Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is draw and interpret the control chart, that is P chart and C chart. The practical outcome that we achieve in today's lecture are draw and interpret the control chart P and C chart. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. P and C chart. These are attribute control chart. Attribute मतलब क्या होता है? Various. It cannot have any fraction or decimal. These are called as the attribute. This control chart deals with the attribute like presence or absence of something, success or failure, accept or reject, correct or not correct. That is called as the attribute. P chart informs number of defective atom as a percentage of whole. P chart क्या inform करता है आपको? डिफेक्टिव एटम कितने हैं एज अ परसेंटेज ऑफ होल, मतलब पूरे एटम में कितने परसेंट डिफेक्टिव एटम है. सपोज नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन अ कार्टून, नंबर ऑफ लीकिंग ट्यूब्स इन अ बॉक्स ऑफ 48. ओके, तो इसका जो परसेंटेज रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ defective and that indicate the P chart. C chart are used for discrete defect where there can be more than one defect per unit. Okay, यहाँ पे क्या है? डिफेक्टिव है. यहाँ पे क्या है? डिफेक्ट्स पर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ कारपेट, number of complaints per customer of a hotel. Okay, that is called as a defect. Okay, suppose अभी यहाँ पे देखते हैं अपन डिफेक्ट और डिफेक्टिव में का डिफरेंस क्या है. डिफेक्टिव मतलब क्या होगा? एक जबर टोटली ब्रोकन हो गया, ओके, इन अ कार्टून, तो जो ब्रोकन एग है ये क्या हो गया? डिफेक्टिव एग हो गया. लेकिन वो डिफेक्ट जो एग ब्रोकन हुआ है उसमें कितने क्रैक्स है, ओके, जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव बना है, तो दैट क्रैक्स इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. तो हमेशा जो पी चार्ट यूज किया जाता है दैट इज यूज फॉर द defective and C chart used for the defects. Steps to draw the P chart and the C chart. पहले क्या करना पड़ता है आपको? P chart और C chart ड्रॉ करते हो. Sample are taken from the manufactured product and number of faults or defect in it are counted. सबसे पहले आपको कोई भी सैंपल में, कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में से सैंपल लेना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है उसमें डिफेक्ट कितने हैं. The size of defect is not be measured. For example, say 100 pins are inspected out of 12 are found defective, then it is a rejected. Note that the size and location of shape of the defect is not important and not measured. आपको क्या मेजर करना है? ओनली डिफेक्टिव पीस कितने हैं. फ्रैक्शन डिफेक्टिव P is defined as the ratio of number of defective per unit in each lot. फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होता है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर यूनिट लॉट. सपोज 100 का लॉट है, उसमें अगर एक डिफेक्टिव है तो 1 डिवाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन डिफेक्टिव. नाउ इंस्पेक्टेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द लॉट. सपोज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ n number of product from the process, out of which D is the number of product found defective, then the fraction defective कितना होगा यहाँ पे? P is equal to D is upon N, number of atoms we are taken and D is the number of a defective. Now next step is to find out the standard deviation for the P chart. Standard deviation for the P chart क्या रहता है? अंडर रूट P bar ब्रैकेट 1 माइनस पी बार अपॉन एन, वेयर पी बार क्या है? फ्रैक्शन डिफेक्टिव और पी बार इज अ एवरेज डिफेक्टिव समेशन ऑफ पी डिवाइड बाय एन, वेयर पी बार समेशन ऑफ पी बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ऑल सैंपल्स. ओके, सपोज एक लॉट है उसमें 2 डिफेक्टिव निकले, दूसरा लॉट है उसमें 3 डिफेक्टिव निकले,
तो 2 प्लस 3 मतलब क्या हो गया है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ऑल सैंपल्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन, कितने सैंपल लिए आपने टोटल लॉट में, दैट इज कॉल्ड एज n। Control limit for P chart can be calculated as upper control limit is P bar plus 3 under root P bar into 1 minus P bar upon n, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या रहेंगी, P bar minus 3 under root P bar into 1 minus P bar divided by n. So that is the two important formula while drawing the P chart, as same as the X chart and the X bar chart and the R chart. For C chart, the control limit for the C chart is based on the Poisson distribution, so that the center line of C chart can be found out using the following average defect. तो C बार क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ असेंबली इंस्पेक्टेड। मतलब वहां पे P चार्ट में क्या देखना पड़ता है आपको, डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, और यहाँ पे C चार्ट में क्या देखना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इन ईच लॉट कितने हैं, दैट इज डी क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट। लेकिन पी चार्ट में क्या रहता है, ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव। कंट्रोल लिमिट फॉर द सी चार्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज सी बार प्लस 3 इंटू अंडर रूट सी बार। लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द सी चार्ट इज सी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट सी बार, दैट इज द अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट। Construct P chart using the given data. There are 10 samples of shaft taken for inspection. Draw the P chart and state whether the process is under control or not from the data given as under. तो यहाँ पे क्या है, 10 सैंपल्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें आप कितने प्रोडक्ट इंस्पेक्ट कर रहे हो, 200 इंस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, 200 में से 10 सैंपल इंस्पेक्ट कर रहे हो, ये क्या हो गए, 200 प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट किया आपने, और उसमें से आपको डिफेक्टिव कितने मिले, 12। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन कितने लिए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सैंपल लिए। ओके, 10 सैंपल में से आपको ये इतने डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले हैं। देन अभी क्या निकालना है आपको, सबसे पहले परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम। ओके, तो परसेंटेज डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये आ गया 6, लाइक दैट 4 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। ओके, मतलब 200 में से कितने डिफेक्टिव मिले आपको, 4। ओके, तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, 4 डिवाइड बाय 200, और परसेंटेज डिफेक्टिव क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। So like that we have to calculate the percent defective for each lot of 200. तो fraction defective, okay, आपको निकालना है अभी for all the lot, that is P bar is equal to D divided by N. Okay, तो D इसमें कितने हैं अभी डिफेक्टिव आइटम, 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइड बाय ये जो डिफेक्टिव आइटम मिले आपको कितने में से मिले, 200 इंटू 100 इंटू 10, बिकॉज 10 सैंपल लिए आपने, दैट्स वाई फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो है 0.031। तो ओवरऑल परसेंटेज डिफेक्टिव जो है 0.031 इंटू 100, दैट इज 3.1%। ओके, तो दैट इज अ परसेंटेज डिफेक्टिव फॉर ऑल द सैंपल्स। ये जो निकाले आपने परसेंटेज डिफेक्टिव कितने हैं, एक एक सैंपल के लिए, लेकिन ये जो निकाला आपने क्या निकाला है, ओवरऑल परसेंटेज डिफेक्टिव ऑफ ऑल द सैंपल, दैट इज अ पी बार। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज पी बार प्लस 3 इंटू अंडर रूट पी बार माइनस पी बार अपॉन एन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है पी बार की वैल्यू, दैट इज 0.031, यहाँ पे रखी, तो आपको जो वैल्यू आई यहाँ पे ये कितनी आई, 0.042, लेकिन इसका परसेंटेज निकालते हैं अपन, तो कितना आ गया, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज 4.2% परसेंटेज डिफेक्टिव। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी आ गई यहाँ पे, 1.9%। ओके, तो 4.2% एंड 1.9% इज द परसेंटेज डिफेक्टिव और अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ द percentage defective in the P chart. Now we draw the P chart with the help of this upper control limit and the lower control limit. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले क्या करना है, P चार्ट ड्रॉ करते हो सबसे पहले x एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड y एक्सिस पे
परसेंटेज डिफेक्टिव। तो मैं स्टार्ट किया यहाँ पे 0%, 1%, 2%, 3 अप टू 7, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, 1% डिफेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ सबसे पहले देखेंगे अभी पहला जो सैंपल है, पहला ऑब्जर्वेशन है दिस वन। यहाँ पे परसेंटेज डिफेक्टिव कितने हैं, 6। तो ये है पहला नंबर जहां पे परसेंटेज डिफेक्टिव कितने हैं आपके, 6। ओके, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं अभी। सेकंड ऑब्जर्वेशन में कितने हैं, 2। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन में 4। देन फोर्थ ऑब्जर्वेशन में 1.5 हियर। देन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में कितना है, 3.5। So like that we have to mark all these points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then before that first draw this line, that is a mean percentage defective. P bar कितना आया, 3.1%, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट किया है और अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट किया है 4.2%। ओके, तो ये तीनों लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे नोटिफाई किया है क्योंकि ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है आपको, मीन परसेंटेज डिफेक्टिव। देन दिस लाइन अपर कंट्रोल लिमिट, दिस लाइन लोअर कंट्रोल लिमिट, एंड दिस चार्ट शोज द परसेंटेज डिफेक्टिव। ओके, नाउ वी हैव टू जॉइन दिस ऑल पॉइंट। तो आपको ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको, तो प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल, मतलब जो डिफेक्टिव आइटम आ रहे हैं दैट इज नॉट विद इन द कंट्रोल लिमिट, मतलब जितने आने चाहिए नॉर्मली यानी इतने आए तो वो क्या रहेंगे, एक्सेप्टेड रहेंगे। लेकिन ये क्या आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं डिफेक्टिव, मतलब प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम बाहर आ गए डिफेक्टिव, दैट्स व्हाई द प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पी चार्ट प्रॉब्लम। Now next, construct a C chart using data given below. During the production of nano car, 10 cars were inspected and defect in each car were as under. Draw the C chart, control limits and comment about the process 1 2 3 4 up to 10। तो यहाँ पे पहले कार में जो डिफेक्ट है 1, दूसरे कार में 3, तीसरे कार में 13। सबसे पहले क्या करना है आपको, एवरेज डिफेक्ट निकालना है इन द C bar, that is total number of defect upon number of assembly inspected, that is summation of D divided by M। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट कितना हो गया, 1 to 5, मतलब 1 to 5 जितने आएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार कितने हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ जो असेंबली इंस्पेक्टेड है या फिर कार इंस्पेक्टेड कितना है, यहाँ पे 10 है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4.3। नाउ सिमिलरली अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द C चार्ट इज C bar plus 3 into under root 3 into C bar, that is 4.3 plus 3 into under root 4.3 is equal to 10.52। Similarly यहाँ पे lower control limit minus 1.92, so that is similarly taken as a 0। Now we draw the C। Now this is the C chart। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है x एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ कार, एंड y एक्सिस पे क्या है, डिफेक्ट्स इन नैनो कार। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नैनो कार। ओके, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे ऐसा हैचिंग दे देना, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया 1 कार। देन यहाँ से यहाँ पे सेकंड कार सेकंड सेंटीमीटर पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट 10 कार। देन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिफेक्ट्स इन नैनो कार, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6, लाइक दैट। देन आपको क्या करना है अभी, यहाँ पे मीन C बार C बार यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो C बार की वैल्यू कितनी है, 4.3, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग हियर दिस लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ब्लू इंडिकेट कर रहा है C बार। देन लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी है, 0, और अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है, 10.5। देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर फर्स्ट कार के लिए डिफेक्ट कितना है, 1 है, सेकंड के लिए 3 है, देन look at the second point 3। देन थर्ड के लिए कितना है, 13, तो यहाँ पे थर्ड के लिए 13। देन फोर्थ के लिए कितना है, 4 है, सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ के लिए 4।
देन फिफ्थ के लिए कितना है डिफेक्ट, फिफ्थ कार में 2 डिफेक्ट है, दैट्स वाई 2। देन फ्रॉम द चार्ट ये जितने पॉइंट आपने लोकेट किए इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है बाय द स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज नथिंग बट द सी चार्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जो डिफेक्ट आ रहे हैं क्या जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज इसका लोअर अपर कंट्रोल लिमिट कितना है 10.52 और लोअर कंट्रोल लिमिट 0। बिकॉज अगर कार कंटिन्यूसली चल रही है तो उसमें डिफेक्ट तो आने हैं, ओके लेकिन वो डिफेक्ट क्या आने चाहिए, विद इन द कंट्रोल लिमिट, दैट इज 0 एंड 10.52, मतलब डिफेक्ट कितने जा रहे हैं, लेकिन 10.52 के ऊपर जा रहे हैं। दैट्स वाई द प्रोसेस इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज नॉट इन अंडर कंट्रोल। ठीक है, आपको सी चार्ट से पता चला है। तो सी चार्ट इज मेनली यूज, आपको क्या पता चला यहाँ पे, मेनली यूज फॉर डिफेक्ट्स इन अ प्रोडक्ट। That is all about the C chart and the P chart. P result, we draw the P chart and the C chart. Conclusion, we are able to draw the P chart and C chart. From that, it is concluded that the process are not in a control. The unit outcome achieved in today's lecture are: interpret the control chart X and R bar and P chart and the C chart for measure data of the given sample. Summary of today's lecture: draw and interpret the control chart, that is the P chart and the C chart. The program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Thanks. For any query, contact to this number.